1 year बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, मैथ्यू 13 चैप्टर 1 वर्स से 23 वर्स, जेनेसिस 42 चैप्टर 43 चैप्टर। 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय का 1 वचन से 23 वचन, उत्पत्ति 42 अध्याय 43 अध्याय। हम पढ़ेंगे इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्शन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो यीशु। रिदा नमा खासे कंबो ओशकर खासे कंबो रोह तालर बाहका सियांदुरा रिदेन इकंबो रोको लरहा हदेकिन बा अकासी कंबो ओशकर खासे के बरकसी जिदानमा सी बकासी बोंतो ओकोसी अदेती ननमा तालर बाहा खासे कतकिन बा अशकर खासे केंदरहासा Redin ekambo oshkar khase kamboro hosa zehtkun ba ehtal rabaha akasi kambo oshkar khase kamboro hosa adan ekambo ohti larabaha adatkin ba ohtkin berhel rabaha kasiandura redin ekambo oshkar khase कब्रखतीन रबहांद्रा हस्सा। धन्यवाद करते हैं मेरे स्वर्ग के परमेश्वर, मेरे महान परमेश्वर, अपनी दया और सामर्थ से तू हमको लेकर चलता है। मेरे आबा फादर गॉड, तेरी दया हमारे साथ है और तू हमें कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। हमें माइंड मेंटालिटी में खुदा परमेश्वर तेरा अनुग्रह दे। हम पिता परमेश्वर तेरे दर्शन को भूलने मत दे। हमारे मन ब्लाइंड किए ना जाए खुदा। मेरे परमेश्वर, हमारे मन के ऊपर के आक्रमण ये वचनों के द्वारा आज तोड़ दे खुदा परमेश्वर। हमारे मन को परमेश्वर तो स्थिरता दे मेरे खुदा परमेश्वर। जहाँ पर हमको होना चाहिए वहाँ पर आज हमको होने दे। तेरे वचन मार्गदर्शन करने दे हमारी। और परमेश्वर हमको जहाँ परमेश्वर पिता ज़रूरत है उन जगहों में फिट एंड फिक्स करने वाले, ईश्वरीय रचना में डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लाने वाला तेरा वचन बनने दे। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। मैथ्यू 1 चैप्टर 23 13 चैप्टर 1 वर्स से 23 वर्स हम पढ़ेंगे। मैथ्यू 13 चैप्टर 1 वर्स से 23 वर्स। Of the sower and the seed. Why Christ spake in parables. The exposition of the parable of the sower, divers other parables, etc. The same day went Jesus out of the house and sat by the seaside, and great multitudes were gathered together unto him, so that he went into a ship and sat, and the whole multitude stood on the shore. And he spake many things unto them in parables, saying, Behold, a sower went forth to sow, and when he sowed, some seeds fell by the wayside, and fowls came and devoured them up. Some fell upon stony places, where they had not much earth, and forthwith they sprung up, because they had no deepness of earth. And when the sun was up, they were scorched, and because they had no root, they withered away. And some fell among thorns, and the thorns sprung up and choked them. But other fell into good ground and brought forth fruit, some 100-fold, some 60-fold, and some 30-fold. Who hath ears to hear, let him hear. And the disciples came and said unto him, Who speakest thou unto them in parables? He answered and said unto them, Because it is given unto you to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them it is not given. For whosoever hath, to him shall be given, and he shall have more abundance. But whosoever hath not, from him shall be taken away even that he hath. Therefore speak I to them in parables, because they saying see not, and hearing they hear not, neither do they understand. And in them is fulfilled the prophecy of Isaiah, which saith, By hearing ye shall hear,
and shall not understand, and seeing ye shall see, and shall not perceive. For this people's heart is waxed gross, and their ears are dull of hearing, and their eyes they have closed, lest at any time they should see with their eyes, and hear with their ears, and should understand with their heart, and should be converted, and I should heal them. But blessed are your eyes, for they see, and your ears, for they hear. For verily I say unto you, that many prophets and righteous men have desired to see those things which ye see, and have not seen them, and to hear those things which ye hear, and have not heard them. Hear ye therefore the parable of the sower. When anyone heareth the word of the kingdom, and understandeth it not, then cometh the wicked one, and catcheth away that which was sown in his heart. That this is he which received seed by the wayside. But he that received the seed into stony places, the same is he that heareth the word, and anon with joy receiveth it. 21 verse से आगे, yet hath he not root in himself, but dureth for a while. For when tribulation or persecution ariseth because of the word, by and by he is offended. He also that received seed among the thorns is he that heareth the word, and the care of this world and the deceitfulness of riches choke the word, and he becometh unfruitful. But he that received seed into the good ground is he that heareth the word, and understandeth it, which also beareth fruit, and bringeth forth some 100-fold, some 60, some 30. थैंक यू जीसस। हिंदी में पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 1 वचन से 23 वचन तक। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 1 वचन से 23 वचन तक। बीज बोने वाले का दृष्टांत। उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा, और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया, और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे, और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहाँ उन्हें बहुत मिट्टी न मिली, और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वे जल्द उग आए। पर सूरज निकलने पर वे जल गए, और जड़ न पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे, और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, और कोई 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। दृष्टांतों का उद्देश्य। 10 वचन से आगे। चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। क्योंकि जिसके पास है वह उसे दिया जाएगा, और उसके पास बहुत हो जाएगा। पर जिसके पास कुछ नहीं है, उससे जो कुछ उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूँ कि वे देखते हुए नहीं देखते, और सुनते हुए नहीं सुनते, और नहीं समझते। उनके विषय में यशायाह है कि यह भविष्यवाणी पूरी होती है। तुम कानों से तो सुनोगे, पर समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखोगे, पर तुम्हें न सूझेगा। क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है, और वे कानों से ऊंचे सुनते हैं, और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली है। कहीं ऐसा न हो कि वे आंखों से देखें, और कानों से सुने, और मन से समझे, और फिर जाएं, और मैं उन्हें चंगा करूं। पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती है, और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से भविष्यद्वक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखे, पर न देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने, पर न सुनी। बीज बोने वाले दृष्टांत की व्यवस्था। 18 वचन से आगे। अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ
सुनो, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है। और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। जो झाड़ियों में बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस। हम फल लाने वाले मसीही बनने के लिए पिता, तूने परमेश्वर हमारे अंदर बीजों को भर दिया। मेरे परमेश्वर, यीशु मसीह का आत्मा परमेश्वर के दास और दासियां उनके ऊपर जाहिर करते हैं वचनों को। और पिता परमेश्वर, वो इस प्रकार से पिता वचनों को इंटरनेट से हम तक पहुंचाते हैं खुदा परमेश्वर, कि हम पिता जो कहीं कहाँ नहीं जा सकते हैं, और पिता परमेश्वर जहाँ पर से पिता हमारा भरोसा उठ चुका है, और पिता परमेश्वर जहाँ पर खुदा हमको होना पिता परमेश्वर मुश्किल करके रख दिया है, अब फादर गॉड हमारे रास्ते इतने कड़वे करके रख दिए थे, लेकिन मेरे पिता तूने दया किया हमारे ऊपर। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। तेरा वचन महान है मेरे परमेश्वर, कि तेरा वचन हमारा पीछा करता हुआ हमारे जमीन में पिता परमेश्वर वो बोए जाते हैं, और पिता परमेश्वर इंतजार लगाया जाता है कि वह फसल लेकर आए। तेरे ऐसे दास और दासियों के लिए जो वचनों को पिता प्रचार करके हम तक पिता परमेश्वर उन्नति का कारण बना रहे हैं, हम तेरा बहुत बड़ा धन्यवाद करते हैं पिता। उनके ये स्रोत पिता कभी सूखने मत दे खुदा। उनका पिता हर उठना बैठना चलना फिरना तेरे परमेश्वर अनुग्रह और दया के नीचे रख खुदा। अब फादर गॉड उनके आज्ञा पालन से खुदा हम आशीषित हो रहे हैं। इस बात के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आबा हमें भी खुदा परमेश्वर, जो जमीन पर अभी तक तेरा वचन बोया नहीं गया है, हमें पिता परमेश्वर उस जमीन को पिता देकर पिता हम से भी तो अपने काम करवा, ताकि हम पिता उनके अंदर फल लेकर आने में पिता कामयाब हो सके। तेरा अनुग्रह कर हम पर खुदा, तेरा अनुग्रह दे हमें खुदा। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, तेरे वचन हमें फिट एंड फिक्स करने दे, ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आने दे। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन आमेन आमेन। जेनेसिस 42 चैप्टर 43 चैप्टर हम पढ़ेंगे।